हेलो एवरीवन, जिवें कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि कल मतलब संडे ठीक है अपना एक्सरसाइज ਦਾ एग्जाम सी। सो आई होप ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ एग्जाम ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ एग्जाम ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਆਨਸਰਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। सो स्टूडेंट साडे ना टोटल 17 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अपने क्वेश्चन जेडे 76 तो स्टार्ट हो गए 92 तक मैं सेट डी सॉल्व करवाने जा रही हूं तानू, ठीक है, सेट डी सॉल्व करवाने जा रही हूं। तो अपने जेडे क्वेश्चंस है वो 76 तो लेके ना 92 तक अपने क्वेश्चन सीगे। सो सारे के सारे आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलो देखिए फिर एक बार, अरे जस्ट वेट अ मिनट। चलो जी, सो सब तो पहला क्वेश्चन जो अपने को आया वो किसी की रॉन्ग नंबर सीरीज तुसी फाइंड करनी है। जिवें अपने को 2 है, उस तो बाद की है 5 है, ठीक है, 2 तो बाद की है 5 है, उस तो बाद 10 है, फिर की है 17, 26 है, 37 है, 50 है ते 64 है। फटाफट तो डिफरेंस देखो, 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, फिर किन्ने दा 9 का, 11 ਦਾ 13 ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੀ ਹੈ 15 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਸੋ ਇੱਥੇ 65 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 64 ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 76 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਡ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਡ ਦੇਖੋ, ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 18, ਉਹ 15, ए 3, फिर 4। अगर यदि कोर्स की गल करिए 21, 18, 4 ਤੇ 17 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? +3 ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ मतलब ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਸਵੈਨ ਦਾ। सेम ਆਪਾਂ +3 ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ s +3 ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 19 + 3 करोगे अपने को कितना आएगा? ठीक है, अपने स्वयं का पता करना है ना, v की बाई यानी कि v। फिर 23 + 3 करांगे 26 आएगा। उस तो बाद 1 + 3 करांगे 4 आ गया। 14 + 3 कितना? 17 आ गया। V Z D Q कितने आ रहा है? बी ऑप्शन। सो 77 का की सी? ऑप्शन बी, V Z D Q, राइट। अगला देखते हैं, व्हाट इज 2 डिजिट नंबर। वैसे देखो है ना डाटा सफिशिएंट का क्वेश्चन है, ठीक है, डाटा सफिशिएंसी का। वैसे मैथ्स का क्वेश्चन है, बट चलो मैथमेटिकल रीजनिंग च भी आ जाता है। वो कह रहे हैं व्हाट इज 2 डिजिट नंबर। आप 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1 ਸਾਨੂੰ गिवन है कि the sum of digit of the number is 9। ਉਹ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਮ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 9 ਤੇ ਉਹ ਡਿਵਿਜ਼ੀਬਲ ਵੀ ਹੈ 9 ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 78 ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਮ ਵੀ ਕੀ ਆਏ 9 ਆਏ, प्लस नाल क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय भी 9, ठीक है। सो कुछ नंबर्स माइंड आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं सेकंड की हेल्प ले लवा नाल, सेकंड की कह रहा है कि द 10 डिजिट इज ट्वाइस द यूनिट डिजिट। कि अगर मैं मान लो 63 ले रही हूं, ठीक है, यूनिट डिजिट का डबल चाहिए सानू 10 डिजिट आ गया। दोनों का सम सानू 9 चाहिए वो भी आ गया, एंड ए डिविजिबल बाय 9 भी है वो भी आ गया। सो सानू दोनों नु यूज करके समझ आ रहा है कि केड़ा नंबर होएगा 2 डिजिट नंबर की है 63। सो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 78 ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਟ what time, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ what time between 5 to 6 o'clock will the minute hand and hour hand be 7 spaces apart। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 5 ਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਆਰ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ 7-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੂਈਆਂ ਰੱਖ ਦੋ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਦੋਨੋਂ ਸੂਈਆਂ 5 ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦੋ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 5-25, ਠੀਕ ਹੈ। तो 5-25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ 7 ਮਿੰਟਸ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ -7 ਕਰ ਦੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ +7 ਕਰ ਦੋ, ठीक है। ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਤੋਂ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5-25 ਤੇ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ। -7 कर दो, +7 कर दो। सो एक टाइम अपने को कितना आ जाएगा जब तुसी -7 करोगे 18 आएगा, ठीक है। एक कितना आ जाएगा इत्थे 18 आ जाएगा ना जब तुसी माइनस किया, ते एक अपने को कितना टाइम आ जाएगा, एक अपने को आएगा 32। तो 2 टाइम आ रहे,
ठीक है, एक अपने को 32 आ रहा है, एक कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो फटाफट ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। 18 ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 12/11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 12/11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। ਜਦੋਂ 18 ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 216/11, मतलब ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ 320 32 है ना, हाँ। सो 320 32 दूना 64, तो एक अपनी 384 वाली, यानी कि दो टाइम ऐदा दे आ रहे हैं। सो अपना आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों ही अपने आंसर्स हैं। 4 मिनट का फर्क उदो भी होएगा जो मिनट हैंड एक बार पीछे जाएगा, एक बार मिनट हैंड अगे भी जाएगा। सो अपना आंसर आएगा ऑप्शन सी। उस तो बाद अपना जो क्वेश्चन आ रहा है वो है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 80 दैट इज ब्लड रिलेशन। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ देखो, कहते 6 मेंबर्स है, C is son of B, C son है किदा son है B दा, बट B is not mother, अगर B mother नहीं है सो फादर होएगा। उस तो बाद नेक्स्ट की लिखा है A and B are married couple, A ते B married couple है, सो A mother होगी। E is brother of B, हुन E किदा ब्रदर है, B दा ब्रदर है, E is brother of B बन गया। D is daughter of A, नेक्स्ट उन्होंने की बोलिया कि D जड़ी है वो डॉटर है, किदी डॉटर है A दी, यानी कि D A दी C दी सिस्टर हो जाएगी। उस तो बाद F is brother of C, F ब्रदर है किदा C दा है, तो फिर D दा भी होएगा। हाउ T रिलेटेड टू F, D की लगता है F था, सो D F की कौन लगेगी, सिस्टर लगेगी। सो ਇਹਦਾ अपना 80 का आंसर आया सी ऑप्शन ए। चलो जी नेक्स्ट देखिए, अगला देख दिया अपने को डायरेक्शन का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट P अमित वॉक 12 मीटर नॉर्थ, P पॉइंट तो स्टार्ट करके, P पॉइंट तो स्टार्ट करके अमित की करता है, पहला तो 12 जाता है नॉर्थ वाल नु, उस तो बाद की करता है लेफ्ट टर्न करता है 5 जाता है, ठीक है। लेफ्ट टर्न करके 5 चला गया, फिर तो लेफ्ट टर्न करता है, हुन लेफ्ट टर्न नीचे नु होएगी, लेफ्ट टर्न करता है ते 12 जाता है, सो 12 तेरे सामने ही हो गया, ठीक है। लेफ्ट टर्न करके 12 चला गया, फिर उधरों उन्हें करनी राइट टर्न ते 3 जाता है। हुन इधरों राइट टर्न करना मतलब इस साइड जाना 3 जाना, ते किस पॉइंट ते पहुंच जाता है, क्यू पॉइंट ते। तुसी दसना है डायरेक्शन डिस्टेंस दसना है किदे किदे विचकार, P ते Q दे विचकार, ठीक है। सो इथों तक 3 5, सो 3 + 5 करांगे अपने को कितना आ जाएगा 8। सो ਇਹਦਾ आंसर सी ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए ਇਹਦਾ करेक्ट आंसर सी। चलो जी अगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना सी ऑर्डर रैंकिंग का इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी कर रखे है क्लास भी। सो की है इन रो ऑफ स्टूडेंट्स राजन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, तो राजन की पोजीशन कितनी है 12th दिखती हुई है लेफ्ट तो, ते सुरेश 18 है राइट तो। अगर दोनों इंटरचेंज कर दे, राजन सुरेश की जगह ते सुरेश राजन की जगह ते, तो दोनों जो इंटरचेंज कर दे तो राजन बन जाता है 20 फ्रॉम लेफ्ट। हुन राजन ऑलरेडी 18 बन चुका है राइट तो, 20 भी बन जाएगा लेफ्ट तो। सो इस केस आप दसांगे कि टोटल कितने स्टूडेंट्स है। सो राजन के तुहानू दोनों रैंक पता है, एक पता है तुहानू 20, दूसरा तुहानू ओहदा की पता है 80। -1 नहीं हुंदा ना कि एक पर्सन के 2 रैंक पता है, दोनों ऐड करो एंड तुसी की कर दो -1, तो आंसर आ जाएगा कितना 37 ऑप्शन सी। चलो जी अगला देखते हैं। तो अगला अपना क्वेश्चन सी स्टेटमेंट द असम्पशन दा टू इनहेंस रोड सेफ्टी, ठीक है, द गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल द व्हीकल्स टू बी फिटेड विद जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस। सो असम्पशन आप दसनी है, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने की किया रोड सेफ्टी नु इंप्रूव करने वास्ते गवर्नमेंट ने यह कह दिता है कि जिन्ने भी व्हीकल्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस जरूर फिट होने चाहिए। तो सब तो पहला क्या गया है कि जीपीएस ट्रैकिंग जी है वो हेल्प करेगी व्हीकल्स नु मॉनिटर करने ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ रोड एक्सीडेंट ਜਿਹੜੇ रिड्यूस होंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। दूसरा की है, दूसरा कह रहे हैं कि all vehicles manufacturers have the technical capability to install GPS devices। कहते कि जिन्ने भी व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरर्स हैगे है उन्होंने कोल की है कैपेबिलिटी हैगी है कि ਉਹਦੇ ਚ जीपीएस फिट किया जा सके। अगर कैपेबिलिटी हैगी है ताई गवर्नमेंट ने किया, अगर कैपेबिलिटी नहीं होंदी गवर्नमेंट क्यों कहती, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ आएगा, दोनों ही ठीक है। अपना आंसर आएगा both assumption 1 and 2 follows, that is option C will be the right answer, ठीक है जी। अगला आप क्वेश्चन करते हैं, ऑड डेज फाइंड करने हैं, ठीक है। आप ऑलरेडी कीते हुए ऑड डेज दे भी क्वेश्चन की करना होता है डिवाइड बाय 7। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ईयर्स दे ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 48 ईयर्स, टोटल 48 ईयर्स। सो अपने को एक फॉर्मूला सी टोटल ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7।
ਟੋਟਲ ਈਅਰ ਕਿੰਨੇ ਆ 48। ਇਹਦੇ ਚ ਲੀਪ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ 12। 48 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 12 डिवाइडेड बाय 7। सो 60 डिवाइडेड बाय 7 ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। देन ਅਸੀਂ रिमाइंडर देखना ਹੁੰਦਾ है। सो रिमाइंडर कितना बचेगा 7 8 56 चले गए, रिमाइंडर अपने को कितना बच जाएगा 4। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 84 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन अपना है गया सिटिंग चो। देख लो सिटिंग चो भी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सिटिंग चो रो बेस्ड क्वेश्चन आया ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ 6 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, E immediately to the right of D, B second to the left of D, फिर C occupies the third position from left hand। So पहले स्टार्ट कर दिया। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6। C occupies the third position from left, C आ गया। Now E immediately right of D, E ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ D ਦੇ just right ਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। B second to the left of D, ठीक है, B ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ D ਤੋਂ second left ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ F sit at extreme right hand, F ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। A not adjacent to C, A ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ D ਤੇ E ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, D ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ E ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ B ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ A is not adjacent to C। सो होर कितने भी रख सकते हैं आप। देखो जरा एक बार, देखो आप बनाना ना A is immediately to the right of D, so E immediately to the right of D है, B second to the left of D। इसी तरीके नाल बनेगा C occupies third position from left, वो आप बना चुके हैं। टोटल 6 फ्रेंड्स है वो भी हो चुके हैं। F sit at extreme right hand, F भी आप इत्थे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सो ध्यान देना अगर ਅਸੀਂ देखिए, अच्छा ठीक है हो गया ना। ਇੱਥੇ D ਆਇਆ ਇੱਥੇ E ਆਇਆ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਆਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ A C ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, नो इशू, A ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ A ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ A ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ, ਬਟ ਨਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ 17 ਆਪਣਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਹਨਾ, 23 ਐਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ 1 ਪਲੇਸ ਲੈਫਟ ਤੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਓਗੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। बट ऑप्शन डी फिर भी ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 25 ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ 25 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 36 ਨੇ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, 36 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, चलो अगला की है इवनिंग का टाइम है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਡੋ ਬੇस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्शन ਦਾ ਆਪਣਾ क्वेश्चन आया, मतलब अच्छे खासे अपने क्वेश्चन आए हैं, सारा क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग ਦੇ। सो अपना ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ सनसेट बिफोर सनसेट मतलब इवनिंग ਦਾ टाइम है। सो ਇਹਦਾ मतलब सन ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸਟ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੋ ਪਰਸਨ ਰੇਖਾ ਤੇ ਹੇਮਾ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਖੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੇਮਾ ਸ਼ੈਡੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਟੂ ਹਰ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਇਹਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੇਮਾ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਮਾ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੌਣ ਹੋਏਗੀ, ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਹੇਮਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੇਖਾ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ डायरेक्शन ਚ ਰੇਖਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਖਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ऑप्शन बी। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट ते ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕੋਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ हैज imposed a complete ban on polythene bags within city limits। दूसरा की है कि several localities in the city are experiencing severe waterlogging due to block drainage। देखो की हो सकता है ना, अगर ਅਸੀਂ क्वेश्चन नंबर 88 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, अगर ਅਸੀਂ क्वेश्चन नंबर 88 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਟਰ ਲੋਗਿੰਗ ਡਿਊ ਟੂ ਬਲੌਕੇਜ, मतलब ਬਲੌਕੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ।
ਸੋ ਵਾਟਰਲੋਗੇਜ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਜ਼ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੋਲੀਥੀਨ ਤੇ। ਸੋ ਕੋਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 2 is the cause, 1 is effect, option B will be the correct answer। ओके, सो 89th क्वेश्चन अपना वेन डायग्राम ਦਾ ਹੈ। ठीक है, भी बहुत सौखा क्वेश्चन सी। वेन डायग्राम ਦਾ क्वेश्चन है कि कह रही है ना ग्रुप ऑफ 120 स्टूडेंट, टोटल अपने को कितने स्टूडेंट हैगे है 120, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਲੇ, 55 ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਰਮਨ ਵਾਲੇ। ठीक है, फ्रेंच जर्मन, ते बोथ वाले कितने हैं 35। सो बोथ वाले 35 है, 70 फ्रेंच वाले है। सो अपने कोल ओनली फ्रेंच वाले 35 बच्चे, ते और की है 55 जर्मन वाले है, 35 में ऑलरेडी रख चुकी हैं। सो 20 मेरे को कितने बच जाते जर्मन वास्ते। ठीक है, हुण तुहानू की कह रहे हैं कि यह दसो कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी नाइदर लैंग्वेज, मतलब कोई भी लैंग्वेज जिहड़े नहीं पढ़ते। सो टोटल चो अगर मैं 120 चो अगर मैं यह पोर्शन घटा दा, यानी कि 35 प्लस 20 अगर असी माइनस कर दिए साडे कोल आ जाएगा बाहर वाला पोर्शन, यही होएगा ना नाइदर। सो 120 चो माइनस करने की कोशिश करो, 70 प्लस 20 90। अपना फाइनल आंसर की रहेगा यदा 30, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, चेक करते जाओ आराम दे नाल अपने अपने आंसर प्लस सॉल्यूशंस। उस तो बाद दो क्वेश्चंस अपने को ऑड वन आउट दे भी आए हुए सी। किवें देखो 17 23 37 51 सारे प्राइम नंबर्स है, पर 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर, दैट्स व्हाई 51 इज ऑड वन आउट। उस तो बाद अगला देखिए अगर असी तो लेटर से बेस से सी, देखो 1 गिवन है, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है। 2 ਦਾ फर्क पहले कितना 2 ਦਾ फर्क है, फिर 3 ਦਾ, फिर 4 ਦਾ, फिर 5 ਦਾ। इधर देखो 1 है, 5 है, उस तो बाद 9 है, 13 है, 17 है। कितना फर्क है, इतने कांस्टेंट फर्क चल रहा है 4 ਦਾ। इतने अगर देखिए अपने को 4 है, 5 है, 14 है, 19 है, 24 है। इतने कितना फर्क चल रहा है, हाँ जी, इतने अपने को 4 सी, उस तो बाद 9 सी। तो सारे 5 ਦਾ फर्क चल रहा है। और लास्ट ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ 5 है, फिर की है 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। ਇਹਦੇ ਚ अपने को चल रहा है 3 ਦਾ। तो सारी ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ कांस्टेंट डिफरेंस चल रहा है, बट ਜਿਹੜੀ ऑप्शन अपने को फर्स्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है। सो डिफरेंट कौन होएगा, फर्स्ट ऑप्शन। बाकी सारे अच्छी या 4 ਦਾ या 5 ਦਾ या फिर 3 ਦਾ फर्क है, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अलग है 2 3 4 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना बॉक्स बेस्ड पजल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ अपना लास्ट क्वेश्चन है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ बॉक्स बेस्ड पजल। कहते 5 बॉक्सेस ਜਿਹੜੇ ਹੈ वर्टिकली प्लेस ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ एस इज इमीडिएटली अबव टी। ਹੁਣ देखो 5 बॉक्सेस है, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਈਜ਼ੀ ਕੰਫਰਟ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਐਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਬਵ ਟੀ ਐਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਪੀ ਇਜ਼ ਅਬਵ ਕਿਊ। ਹੁਣ ਪੀ ਅਬਵ ਆਏਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਅਬਵ ਆਏਗਾ, ਕਿਊ ਦੇ, ਬਟ ਨॉट ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਬਵ ਕਿਊ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। आर इज एट वेरी टॉप, कहते आर बिल्कुल टॉप ते है, क्यू इज एट वेरी बॉटम, क्यू बिल्कुल बॉटम ते देता उन्होंने। ठीक है, क्यू बिल्कुल किथे है, बॉटम ते। उस तो बाद टी इज इमीडिएटली अबव क्यू, कहते टी किथे है, जस्ट क्यू तो ऊपर। सो जिथे टी आएगा, टी तो जस्ट ऊपर, मैंने पता है कि एस भी आएगा। सो बचिया कौन है, पी। पी सानू क्यू तो अबव चाहिए सी। की पूछ रही है, कहते दसो कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम टॉप, आर पी एस टी क्यू, आर पी एस टी क्यू, ऑप्शन ए। सो स्टूडेंट्स है अपने कुछ क्वेश्चन सीखे। ठीक है, तुझे देखा है कि रीडिंग दा लेवल बहुत इजी सी, जस्ट अपना एक दो क्वेश्चन सी जिवें कि असम्पशन वाला हो गया, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि थोड़ी जी हो जाती है, ਆਪਾਂ श्योर नहीं हो पाते कि अपना मतलब आंसर सही है कि नहीं। एक असम्पशन, एक कॉज एंड इफेक्ट, बाकी ਤਾਂ ਸਾਰੇ डायरेक्ट क्वेश्चन सी। एंड एक ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡਡ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ क्वेश्चन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਨਸਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।